यार सबसे पहले तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को मैं सल्यूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान हादका और मैं हूं आपकी मेज़बान सना। আমি হাদি চান কেমন আছেন বন্ধুরা? आशा करी ভালো আছেন। अल्हम्दुलिल्लाह আমি ভালো আছে जी। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो है, उसका टाइटल है जी बांग्लादेश इज रीलोकेटिंग 1 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजीज। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने, बाकी सब बातें करेंगे बाद में। जी दोस्तों, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी आपने जरूर प्रेस करना है। हमने दूसरे चैनल को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, प्लीज जाएं वहां पर और उसे भी सब्सक्राइब करें। Bangladesh, meanwhile, is relocating 1 lakh Rohingya refugees. They're being moved to new facilities at the Bhashan Char Island. A report by the local press describes the new site as a quote-unquote better home for the Rohingyas. It will have amenities of a higher standard, buildings for the Rohingyas to live in, with hospitals, community clinics and a police station. Here's a ground report वाह यार, क्या by बात है। WION's Lakmina Jasmine Soma. Until 2 years ago, Bhashan Char was covered in a shroud of grass and mangrove trees. But now the desolate area has taken a new look altogether, with buildings painted pink. The island, which emerged in the Bay of Bengal in 2002, has been developed as an eco-friendly human habitat to relocate nearly 1 lakh Rohingyas to relieve the overcrowded mainland camps in Cox's Bazar, where around 1 million took shelter after fleeing a military crackdown in Myanmar in 2017. On a visit to Bhashan Char, it was observed that the project had been implemented around the concept of cluster villages to house more than 1 lakh Rohingyas. The Bangladesh Navy was given the responsibility to implement the project. 2 British companies worked as consultants for onshore and offshore activities. The project was executed at a cost of about 3,100 crore takas. All the buildings have been constructed 4 feet above the ground, and every cluster has 12 houses with 16 rooms and a 4-story steel structure shelter station. There are 1,440 rooms and 120 shelter stations in 120 cluster villages. Every room can accommodate 4 people. In case of any calamity, 860 people can stay at the shelter stations, which can withstand cyclones with speeds of about 260 kilometers an hour. Bhashan Char is ready to receive nearly 1 lakh Rohingya refugees from houses for living, solar panels for electricity, biogas fuel for cooking and waste management, cyclone centers, mobile networks, everything is available for them. Still, Rohingya refugees are not interested to come here, saying it's a cyclone-prone area. They are concerned that what they will do in any emergency case as it is disconnected from mainland. They are also saying that it will be so difficult for them to communicate with their relatives. About the island's vulnerability to cyclones, the project director says that the embankment had been constructed after studying history and data of the last 176 years. 12 kilometers off the embankment at a height of 9 feet had already been completed, and work was underway to increase the height to 19 feet. It's not an isolated island. It's an island like Sandweep and Hatia. If you climb on the roof of this building, you will see Sandweep on one side and Hatia Island on the other. The facilities of the shelter here are more than those of the 2 islands. For example, Sandweep has a shelter center for 4,000 people, whereas the shelter center is for only 1,000 people. Besides, the shelter centers are very close to home. The 12.1 kilometer dam that we have erected has made it easier to face with a number of recent storms, such as Fani, Amphan and Bulbul. Even the water was out of the dam at that time. 2 20-bed hospitals and 4 community clinics have been constructed. There is a police station and a police post on the island. There are 2 playgrounds for the Rohingya children, and there is some space available for playing in every cluster house.
There are also Excellent. places for prayers, burials, and markets. Accommodation has been made available for officials of the government, the UN, and NGOs. There are also 2 helipads. Trees are in abundance on the island. The scope for earning an income is limited in the existing Rohingya बहुत बड़ा camps in स्टेप Cox's लिया Bazar. बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। In contrast, there will be various avenues for means of livelihood on Bhashan Char. According to the Bangladesh Navy, the possible ways of earning can be fishing, poultry farming, sheep and cattle rearing, and providing different community services. The Bangladesh Navy has already planted Excellent. paddy, vegetables, and trees there. लोगों को वहाँ पे Despite these जिंदगी developments, due to रहने the का objection मकसद of the भी दे रहे हैं। Rohingyas, the relocation process पारिक has ना got बैठे stuck, लोग। and the government is concerned that this costly infrastructure might fall into disuse and consequent ruin if the relocation does not take place in a year and a half. The UN has emphasized the importance of undertaking an independent and thorough technical and protection assessment of the site, taking into account considerations of safety, sustainability, and protection issues prior to any relocation taking place. The assessment process should include on-site's visit to Bhashan Char. दिल जीत Lakmeena लिया यार Jasmine बांग्लादेश Soma from गवर्नमेंट ने। Bhashan Char for WION World is One. Thank you for watching Gravitas on WION's YouTube channel. If you want to stay up to date with what's happening around the world, जी वेलकम बैक channel and don't जी हादी जान। यार सबसे पहले तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को मैं सल्यूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इन हालात में रोहिंग्या से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं ना, रिफ्यूजीज कहते हैं उर्दू जुबान में ताजिर को, मुहाजिर जो आ रहे हैं ना, मुहाजिरीन जो आ रहे हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं है, हिजरत करके जो आ रहे हैं जहाँ पे जिनके लिए और कहीं जगह नहीं है, बांग्लादेश उन्हें वेलकम कर रहा है और उन्हें अकोमोडेट कर रहा है और हर तरह की फैसिलिटीज दे रहा है। यार बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह से कोई कंट्री के लोगों का वेलकम कर रही है और उन्हें जीने की एक नई उमंग दे रही है और वजह दे रही है। हर जैसे कि इन्होंने बताया कि जो एक आइलैंड है और वहाँ पे जो है उन्हें उनके लिए 1000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे रूम बनाए गए हैं। उनमें हर रूम में जो 4 लोग जो हैं वो रह सकते हैं, इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इसके साथ हॉस्पिटल वहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लिनिक्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ जो है प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए बनाए गए। यार सीरियसली यार ऐसा लग रहा है कि जैसे यार ये दिल से वेलकम किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म बनाए गए हैं। वाकई यार से ना देखो कोई आता है हिजरत करके इंतहा कर दिया, कोई आता है हिजरत करके। मैंने नहीं कभी सुना कि उनके लिए प्ले ग्राउंड भी बनाए गए हों। सही बात है। उनके बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए जाए ताकि बच्चे वहाँ पे मेंटली तौर पर जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, डिसहार्ट ना हो, वालदैन ना डिसहार्ट हो। जो भी आए वेलकम किया जा रहा है, उनका सारा खर्चा उठाया जा रहा है, आजादी से जी सके। हाँ सही, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि हाँ। उन्होंने इस तरह से इंतजाम किए हैं कि वो आए, आराम से रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करें। यार हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई है, तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। वाकई यार मुझे बहुत खुशी हुई कि यार, और मैं सरप्राइज भी हुआ यार कि इतना कुछ किया जा रहा है। यार मुहाजिर जब आते हैं ना तो कोई भी नया कैंप्स लग जाते हैं तो लोग सोचते हैं अमूमन क्या होता है कि सना कैंप्स लगा दिए जाते हैं, हुजरियां बना दी जाती हैं कि चलो अब ये यहाँ पर लोग जो है ना यहाँ पे बैठे, कोई इंतजाम नहीं होता, कोई टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं, ना रूम्स होते हैं। तो बिल्कुल जैसे उनकी अपनी कंट्री हो, ऐसे ही है। हाँ, एज अ कंट्री उन्हें वेलकम किया जा रहा है कि आपका ही मुल्क है, आप यहाँ पर आए। प्रेयर्स के लिए उन्होंने जगह बनाई है, मस्जिद मसाजिद वगैरह, प्रेयर्स के वो अपार्टमेंट्स बनाए कि आप यहाँ पे जाके अपनी इबादत भी कर सकते हैं। तो यार हर तरह से जो है ना उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है और वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लोग वहाँ पे बागों में जाएं, वहाँ पे जानवरों को चराएं, घूमें फिरें, उन्हें किसी तरह की कोई हर्डल्स नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ ना हो, ना कोई खतरा हो। वो बेकार भी ना रहे हाँ। कि हम मेहमान है, चले ठीक है क्या करना, मतलब उनके जिंदगी का वो ये समझे ही ना कि हमें वहाँ से अगर किसी ने निकाल दिया है तो अब हम लावारिस हैं। ऐसी सोच को खत्म करने के लिए उन्होंने हर तरह से जितना पॉसिबल हो रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से वो कर रही है।
सही बात तो यार ये बहुत ये बड़ा बहुत स्टेप बड़ा है। स्टेप है और बहुत खुशी भी होती है जब कोई ऐसा नेक काम करता है। जान ये नेक काम ही है, तो बहुत ज्यादा हमें खुशी भी हुई और हमने जो है काफी सरप्राइज हुए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और हर गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए यार क्या ये ख्याल है? वाकई ये इंसानियत इसे कहते जी। हैं कि मुल्क के साथ साथ आप कितने सिंसियर हैं अपने मुल्क के जी। साथ, आप लोगों की किस तरह खिदमत कर केयर सकते करते हैं, हैं, ये कितना केयर करना जज्बा होता है। है। वो अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ कितने वो भी अब हमें पता चले। देख सही लें, बात है। अगर कोई और कंट्री हो ना सना ऐसे हालात में, वो क्या करते हैं यार 1 लाख लोग आ रहे हैं, सही। कैन यू इमेजिन 1 लाख लोग आपके मुल्क में आ जाएं, उनके पास ना रोटी हो, ना कपड़ा, ना मकान, ना उन्हें हर दुकान, चीज़ देना। ना काम, कुछ भी ना हो, वो ऐसे हालात में लोग आपके पास उन्हें आ जाएं। एडजस्ट करना सारी जिंदगी के लिए एक किस्म का मतलब कि बहुत बड़ा हाँ, स्टेप है सना। देखें हम मुल्क के अंदर लोग जो है ना, वो उनके लिए नौकरियां लेना कितना मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। ये तो बाहर से आ रहे हैं यार, सही बात है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, और बस उम्मीद है कि हमें शायद वहां पे जाके आसमान के नीचे जगह मिल जगह जाए, मिल एक जाए, जमीन सही पर। बात है। मगर उनको क्या कैसे डील किया जा रहा है यार, सल्यूट है यार, सही बात है, सीरियसली बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारी दुआ है कि इस तरह से हजन ये इसी मेरी इस बात पर ये हो जाता है कि अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल सही रखें। बात है यार, कि उन्होंने अपना भी ख्याल रखा है और दूसरों का भी ख्याल कर रहे हैं। जी। तो यार ये बहुत अच्छा स्टेप है, वी रियली अप्रिशिएटेड दैट कि इस तरह के कारनामे जो है हो रहे हैं और होने भी चाहिए, और अल्लाह इन्हें कामयाब भी करे, जी, उनकी आमीन। जो ये नेक काविशें हैं इन्हें पूरा भी करे, जी। और इसी तरह से वो लोग जो है यहाँ पे जो है एडजस्ट भी हो जाएं और अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है अच्छे से कर सकें। हमारी ये सब दुआएं आप सबके जी, साथ हैं। आमीन। अल्लाह हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।